Hello, my UPSC aspirant. I hope you all are doing well and welcome to my first ever YouTube video on political science optional for UPSC CSE syllabus as well as the mark analysis. So now, what are we going to do in this video? Let us understand some highlights of the video. Okay. So in this video, we are going to understand about the complete political science and international relations syllabus. When I've word I've mentioned over here is complete. What is complete here means that UPSC always give us a syllabus. Okay. And the syllabus is so vast. Okay. But this vast syllabus of optional give us cost benefit ratio as well. Okay, if we invest it well in this optional, we will score well. And once we will score well, what will happen is that we will able to clear the mains, or we will get a high chance of clearing our mains exam. Okay, so now UPSC always give a syllabus, but the syllabus is not in a comprehensive manner. There are many, many, many parts which are hidden. And so here I am to make your work easy. And how I'm going to make your work easy is that I'm going to provide you a very detailed syllabus, okay, and which will cover a comprehensive area uh, in each and every aspect of the question which are coming in a UPSC exam. Okay. Now, the second part is that how many questions are asked in the exam? This always confuses us, or that is the UPSC aspirant, that how many questions come in the exam, what type of questions come, how many questions or how many parts are important in it. Because what happens is that covering a syllabus is not important, but or studying hard is not important. But what important is that in that syllabus we will try to cover most important questions, most important concepts that are asked in the exam. We're going to fetch that 1 or 2 extra marks from each and every questions which can help us to clear our mains exam. Now, the third one is that how can you plan your preparation smartly based on the marks analysis? And I have, as you can see, I have detailized in detailed format. I have did the marks analysis of everything. So before we move ahead, okay, let me give you a word of question that this video will strictly in a English mode. ये जो वीडियो होगी वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगी because I want that this video should benefit to each and every section of student watching from India. I don't want it to be biased towards the South community or towards the North community or West or East community. I want that each and every student should get benefited from the video that they are going to watch on my YouTube channel, and that's why I prefer कि मैं हिंदी भाषा का ही प्रयोग करूं as well as इंग्लिश का भी प्रयोग करूं बीच बीच में so that mix होके मैं अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं एंड दोनों के लिए भी चीजें इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए. So before we move ahead, let us understand why the political science and international relation optional is very popular and scoring. So every year, हर साल more than 100 toppers come from PSIR optional, okay? Whether it is on in the rank 2, 3, 4, or so on in the recent years. Each and every topper you will see are from this optional, okay? Another point is that it overlaps with the GS paper 2, that is political polity and IR. Number one, this is a very, 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 very major point, okay? Because इसका जो part 1 का, okay, बी पार्ट है, ओके, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, ये जो है वो हमारे जीएस पेपर 2 का पॉलिटी एंड आईआर कवर करता है. ऑल्सो जीएस पेपर 4 के एथिक्स पार्ट यहाँ से, बिकॉज यहाँ के जो थिंकर्स है उनकी आइडियोलॉजीज है उसकी मदद से हम काफी कुछ कवर कर सकते हैं. ऑल्सो ऐसे राइटिंग में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऐसे राइटिंग में एक या दो टॉपिक ऐसे आते हैं जो थिंकर्स बेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट आते हैं जहाँ पे हम थिंकर्स की आइडियोलॉजी को हमेशा यूज करके लिख सकते हैं. ओके, इवन इन इंटरव्यू your understanding of international relation or governance, or if you can talk about any of a thinker ideology, it will fetch you some good marks, okay, or it will give you an edge to your preparation, okay. So when we are talking about political science is an analytical concept. Yes, it requires the past thinking as well, but it is also the contemporary concept. Okay, and trust me when I'm telling you, trust me, you have to trust me because once you get a grip of thinkers,
what are like who are these thinkers, what are they trying to talk about, what circumstances they have made their ideologies. The political science will be so interesting that each and every you just want to is that devote some time to PSIR, and you will be able to fetch very good marks in the exam. And also this section requires a current affairs part, and हम मेंस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते ही है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स कुछ हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे और वो भी पॉलिटी रिलेटेड ही है, तो हमारा काम बहुत इजीली एंड आसान हो जाएगा। थिंकर्स और करंट अफेयर्स को रिलेट करके जब हम आंसर लिखेंगे, काफी ब्यूटीफुली ये आंसर स्ट्रक्चर होगा। ओके, एंड वी कैन इजीली स्कोर 280 प्लस मार्क्स इन एन ऑप्शनल, जो हमें रैंक हमारा ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करेगा और हमें टॉप रैंक में भी लेके आ सकता है। ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द PSIR सिलेबस, सबसे पहले एक बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है कि क्यों है, किस लिए है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैम बहुत सारे क्वेश्चंस है और मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, तो यस, लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो just give me a moment, let me erase all this, and I will help you out in understanding in a better way. Okay, good. I hope you can see this clearly. तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, दोनों भी पेपर जो है वो 250 मार्क्स के है। ओके, एंड दैट इज टोटल और 500 मार्क्स। और मैंने क्या बोला था कि आप इजीली 280 प्लस स्कोर कर सकते हो जब आप थिंकर्स, ओके, और उसी के साथ आप करंट अफेयर्स मिक्स करके आप इजीली कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपके आंसर में ये दोनों कंसेप्ट होगा, ओके, इन करंट अफेयर्स के साथ आपके स्कॉलर व्यूज होंगे, तो आप इजीली एबल टू फेच ए गुड मार्क्स। नाउ हर साल हर एक पेपर, ओके, PSIR का 250 मार्क्स का होता है और वो सेक्शन ए और बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए और बी में डिवाइड होता है मतलब क्या है, मैं आपके लिए बहुत 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 आसान बना देती हूँ। जैसे मैंने बोला पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए एंड बी। ऐसे ही पेपर 2 भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ए एंड बी। पेपर 1 का जो ए है, ओके, उसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिसीज। ठीक है, इसमें ही हमारे थिंकर्स भी आएंगे, जो थिंकर्स होंगे हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एज वेल एज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ओके, सेक्शन बी जो है, यहाँ पे हमारा GS2 मेजरली कवर होता है। ओके, एंड ये जो सेक्शन बी है वो कवर होता है इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी, उसका नेम है। ओके, पेपर जो 2 है, और हम इसको पेपर 2 का जो ए पार्ट है, ओके, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज पे। एंड सेक्शन बी जो है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेजर पार्ट है वो ये सेक्शन कवर करता है और ये सेक्शन करंट अफेयर्स भी कवर करेगा। तो हम देखते हैं ना, इसका जो ब्रेकअप है वो अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। तो ये जो दोनों पेपर है वो 250 प्लस 250 500 मार्क्स के है। तो ईच पेपर जो है ए पी ए पी 125 मार्क्स, 125 मार्क्स, 125 एंड 125 मार्क्स के डिवाइडेड होते हैं। इसमें से हमें स्कोर कितना करना है, वी आर प्लानिंग टू स्कोर अप्रोक्स 300, 280 to 300 मार्क्स। ओके, दिस इज आवर एम टू स्कोर। ओके, नाउ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, हर एक पेपर जो है वो 3 आवर्स का है, एवरी पेपर इज ऑफ 3 आवर्स। ओके, एंड इसमें से हमें ये देखना है कि 3 आवर्स का है, 250 मार्क्स का भी है, 250 मार्क्स 3 आवर्स, 125 मार्क्स ईच, टोटल 500 मार्क्स, 280 वी आर स्कोरिंग। ओके, डन। बट पूछते क्या है, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो टू या फिर कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस दे आस्क।
So they ask 8 questions, एंड वो 8 जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स होते हैं एंड ये क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और आई कैन से इट इज मैंडेटरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, after this, so question 1 and question 5 are mandatory to solve. Okay, then out of remaining 6, you are supposed to solve 5 questions. Okay, so from 8 you have to solve 5 questions. 5 में से 1 and 5 compulsory है, तो 3 questions बचे. ये 3 questions आपको solve करने हैं, ठीक है, 6 में से. और ये जो होगा we have to choose at least one question from each section. ठीक है, in this way this is covered. Marks pattern summary में same 1A P political theory 125, 1B same 125 marks की जो है, ठीक है. इसमें से हमेशा 2 thinkers 3 concepts पूछते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं, फेडरलिज्म. तो ये सारी चीजें जो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिलेबस अंडरस्टैंड करना बहुत 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 जरूरी होता है. एंड यस दिस इज अ प्रूफ, दिस इज वेयर कैंडिडेट्स आर स्कोरिंग 280 to 310 marks every year. Okay, so let us understand the syllabus. See, यूपीएससी ने ऐसा सिलेबस दिया है सेक्शन वाइज, बट इस सिलेबस के अंदर भी ना बहुत बहुत सारी इतनी डिमांड है ये क्वेश्चंस की कि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में भी हमें कवर करना पड़ता है. ये सिलेबस के अंदर भी इतने टॉपिक्स है जो यूपीएससी नहीं पता था बट यूपीएससी हमेशा पूछ लेता है और वहां पे ही हम वी कैन ईदर मेक इट और वी कैन इधर ब्रेक इट टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1. लेट अस टॉक अबाउट द पेपर 1 पॉलिटिकल थियरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें हमारा है सेक्शन ए पॉलिटिकल थियरी. ओके, नाउ फर्स्ट इज पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस. ओके, यहाँ पे आपको पूछेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और कंटेम्पररी अप्रोचेस, नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल पॉलिटिकल थियरी. यहाँ पे एक जो कंपलसरी कंसेप्ट है जो हमें कवर करना है. ओके, और जो यहाँ मेंशन नहीं किया है, इट इज अबाउट बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म. ओके, ये पार्ट आप प्लीज लिख लीजिए. I want each and every one of you, if you are serious in preparation, please take out your book and start writing it. I am going to give you the concepts जो यहाँ पे mention है और यहाँ पे जो बुक में mention नहीं किया गया है बट ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, behavioralism and post behavioralism. Okay, और another concept is topic number 2 theories of state. यहाँ पे liberal, neoliberal, marxist, pluralist, post colonial and feminist. Okay, इसमें से एस्पिरेंट्स पॉलिटिकल कॉलोनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, यहाँ पे जो एलिटिस्ट थियरी जो है, एलिटिस्ट थियरी का जो कंसेप्ट है वो 10 to 20 मार्क्स के लिए पूछते हैं. सो अगेन दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर. ओके, देन जस्टिस, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस. यहाँ पे रॉल्स थियरी है, अमर्त्य सेन आइडियाज है एंड कम्युनिटेरियन क्राइसिस है. रॉल्स थियरी मैं अगेन मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस अवेलेबल है. अगर आपकी मेंस एग्जाम नेक्स्ट ईयर है तो आप डेफिनेटली ये वीडियोस वॉच कर सकते हो. आई गेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पुट किया है जहाँ पे वो रॉल्स थियरी को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में और सिचुएशन देके, केस स्टडीज देके सॉल्व करने में मदद करते हैं, जो हमारे एथिक्स पेपर एंड पीएसआईआर पेपर दोनों में हेल्प करता है. ओके, सो आई वांट इफ यू आर फ्री यू कैन वॉच, अदरवाइज इट्स ओके. बट रॉल्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते, रिकवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
अनदर इज इक्वालिटी। इक्वालिटी टॉपिक में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, ओके, एंड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स यहाँ पे है फ्रीडम, ओके, एफर्मेटिव एक्शन। ये एफर्मेटिव एक्शन बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे 10 to 15 मार्क्स पूछते ही है वो लोग, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट उन्होंने मेंशन करना भूल गए हैं, और हमें यहाँ पे एक टॉपिक लिखना होगा, और वो टॉपिक है रॉल्स थियरी ऑफ इक्वालिटी। ये भी हमें पढ़ के जाना होगा, बिकॉज दे कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, so we always have to be ready about it. Okay, are we good to go? Okay, let's move to next topic, rights. Rights where they are asking us about meaning and theories of rights. What are the different kinds of rights we have? They are asking about concept of human rights. Again, human right concept very important from the exam point of view. यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? नंबर वन, मल्टी कल्चरलिज्म, ओके, एंड अनदर इज women and minorities. We need to learn human rights based on these concepts. Okay. Then democracy, again an important topic. Democracy may say classical contemporary theories. Okay. We also have a different models we need to learn in democracy. That is participatory, deliberatory, okay, cosmopolitan democracy, or we can say representative democracy. Okay. ये जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स 10 to 20 मार्क्स के लिए दे आस्क अस, so we need to be well prepared for that. I hope this is visible. Okay, the seventh one in paper 1 section A, seventh topic is concept of power, hegemony and ideology. यहाँ पे they ask us about, और we need to mention or focus about, because यूपीएससी ने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि we are going to ask about power, we are going to ask about hegemony, we are going to ask about ideology, or we are going to ask about its legitimacy. But what next? इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है हमें ल्यूक्स के बारे में, ग्रामसी के बारे में, एंड फोकल्ट के बारे में। ये जो फोकल्ट है, ये जो है वो है फोकल थियरी ऑफ पावर, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसेप्ट ऑफ पावर, ओके। एंड ये जो है ना एस्पिरेंट्स 10 to 20 मार्क्स के लिए दे कैन आस्क अस, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें इसकी नॉलेज हो, सिर्फ करंट बेसिस पे ही नहीं, मतलब कंटेम्प्रेरी और करंट बेसिस के साथ साथ कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि क्या है इसके बारे में। ओके, पेपर 1 सेक्शन ए, ओके, टॉपिक 8 इज अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसमें दे गोइंग टू आस्क अबाउट लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। इसमें से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो फासिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अनदर इज फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर 10 to 20 मार्क्स से क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स पे। इसमें जो अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कम्युनिटेरियनिज्म, ओके, जिसके अंदर जस्टिस इंपॉर्टेंट है, एंड अनदर इज पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें पावर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली लेजिटिमेशन क्राइसिस का कंसेप्ट भी पढ़ना है, ओके। Please, again, I'm requesting everyone, each and every word that I am mentioning over here is very important. Every year they ask us question based on this term, और every alternate year पेपर उठा के देख लो, मैंने पेपर की डीप एनालिसिस की है, और डीप एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये नैरेटिव पे आई हूँ कि ये चैप्टर में ये सिलेबस में इतना ही मेंशन किया है, बट ये सिलेबस के अंदर जब हम डिटेल में जाएंगे और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तभी समझेगा कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो उन्होंने कवर नहीं किए हैं, बट वो पूछते हैं। यू कैन ओनली सी कि मैंने कितना लिखा है। अभी तक वीडियो हमारा ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज्यादा क्रॉस भी हो चुका होगा,
बट स्टिल हम यहाँ तक पहुंचे हैं बिकॉज दिस इज वेरी वास्ट सिलेबस. बट अगेन इट इज वास्ट गिवन बाय यूपीएससी, बट स्टिल इट इज नॉट कवर एंटायरली वास्ट. एंड हमारा रोल एज एन एस्पिरेंट ये होता है पास्ट ईयर को एनालाइज करो, वहां से क्वेश्चंस कहाँ से टॉपिक से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन से सिलेबस में वर्ड मेंशन नहीं है बट एवरी ईयर जो वो लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है. तो ये रीड करना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. एंड ये जब हमें कंसेप्ट पता हो, मार्क्स पता हो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता हो, तो एक आधे हमें कुछ सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने उसको मिस करके हम ये सब चीजों में एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो हम इजीली फेच कर पाएंगे. ओके. ये वीडियो के अलावा आपको सिलेबस के बारे में, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, इन डेप्थ सिलेबस मैंने कवर किया है, और उसी के साथ साथ कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इनफ एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ कि आपके पास सिलेबस इन हैंड है, इन डिटेल्ड मैनर में है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी पता है. बस ये वीडियो की बात आई टेल यू इज दैट लास्ट 5 years के एक बार यूपीएससी के जस्ट पेजेस घुमा लेना पीवाईक्यूज के, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिकॉज मैं सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसी के साथ आप बहुत एक सीक्वेंस में हो रहा होगे, तो यू विल बी एबल टू डू दैट. ओके. So now let us move ahead to the topic number 9. Now यहाँ से जो है ना थिंकर शुरू हो रहा है. यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, थिंकर शुरू हो रहे हैं. ये है आईपीटी तो हम बोलते हैं, और ये है डब्ल्यूपीटी. इट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर. ओके. तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में बेसिकली ये जो मनु है, ओके, तो मनु, कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, एम की गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एम एन रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण. ओके. दैट इज मनु इज बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इज बेसिकली द कौटिल्य. ओके. देन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यहाँ पे नहीं मेंशन है, मैं लिख रही हूँ. सर सैयद अहमद खान. ओके. ऑल्सो सर Aurobindo. This is again very important topic. एम के गांधी, यूपीएससी को गांधी जी से बहुत ज्यादा ही प्यार है. एवरी ईयर प्रीलिम्स हो या मेंस हो क्वेश्चंस पूछते ही है. अगेन बाबा साहब अम्बेडकर, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू रीड अबाउट. ओके. ऑल दिस आर ना वेरी 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 स्मॉल टॉपिक्स. ओके. 3 to 4 पेजेस सारे थिंकर्स पे सफाइस होंगे रिविजन नोट्स के लिए. बट प्लीज 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 मेक श्योर कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो. एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क्स किए हैं, अम्बेडकर, गांधी जी, ओके, देन सर औरबिंदो, तो ये सारी पढ़ के जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जब मैं बात करूंगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बहुत ज्यादा लेंथी है. ओके. और लेंथी होने के साथ साथ बट सारे टॉपिक्स मोस्टली इंपॉर्टेंट है. ओके. वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जीएस मिल, हिगल एंड मार्क्स. बट यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, ग्रामसी, हैना एरेंट. ओके. देन जीएस मिल हम पढ़ रहे हैं, पर जर्मनी बेंथम के बारे में पढ़ना चाहिए हमें. अगेन थिंकर. ओके. प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे तो सोक्रेटिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ओके. लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो फिल्मर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ओके. मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो अल्थुजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एज वेल एज सीकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा. तो यू कैन सी कि यूपीएससी ने तो हमें बहुत लिमिटेड दिया है, बट उसके अंदर भी हमें कितने सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स निकल रहे हैं. यहाँ पे भी यू कुड हैव सी कितने एक्स्ट्रा थिंकर्स निकल रहे हैं जो यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया बट वो पूछते हैं. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है हमारे थिंकर्स का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. सो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. सेक्शन 1, दैट इज पेपर 1 का सेक्शन 1A. ओके. A topic about political theory and Indian policy का syllabus complete हुआ. A very comprehensive syllabus as you can see, which will fetch you a good mark. Okay. Now section B की बात करते हैं. पेपर 1 में it is about Indian government
and politics. Okay, this is, as I've told you already, this is related to GS2 politics. Mhm. यहाँ पे बेसिकली हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, तो जस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, जहाँ पे हमें लिबरल, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट, सबअल्टर्न, कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में पूछते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछते हैं, ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मास सत्याग्रह, revolutionary movements, then peasants and workers movements. Okay. Then making of Indian Constitution. यहाँ पे basically legacies of British rule. We have to write about different social and political perspectives. यहाँ पे सिर्फ दो टॉपिक्स इन्वॉल्व है, दैट इज इंडियन नेशनलिज्म और उसके पर्सपेक्टिव्स भी। पर्सपेक्टिव्स के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट भी पर्सपेक्टिव्स आते हैं। पर्सपेक्टिव्स में जैसे कि मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, लिबरल, दलित एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है ना, दलित एंड मार्क्सिस्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन नेशनलिज्म, सेकेंड टॉपिक इज पर्सपेक्टिव, ये उसके बाइफर्केशंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज अबाउट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल है। ओके, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, आइडियोलॉजी, फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डिबेट्स एक्सेट्रा। ओके, देन salient constitutional framework भी है, yes, preamble, fundamental right, DPSPs एक्सेट्रा। तो जिसको हम लोग ये बेसिकली बोल सकते हैं, जो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, salient features of Indian Constitution। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो मैंने मेंशन नहीं किया, आप चेक कर सकते हो, जो एक बार है preamble, fundamental rights, duties, DPSP। इसी के साथ you can write about this पार्लियामेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, जुडिशियल रिव्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन। ओके, केसेस जो है यहाँ पे, सारे के सारे केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, देन टॉपिक फिफ्थ इज अबाउट ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी टॉपिक में जाने से पहले हम एक टॉपिक जो देखते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बाद एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो था वो क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की जब मैं बात करती हूँ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल ऑर्गन होगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और हम रीड करने ही वाले जीएस2 में, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रीड करने में कोई नुकसानी नहीं होगी। देन ग्रास रूट डेमोक्रेसी में यस, पंचायती राज, म्युनिसिपालिटी, 74th 73rd अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस। ओके, एंड अनदर ग्रास रूट मूवमेंट्स। ग्रास रूट मूवमेंट्स क्या क्या थे? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जानना है कि पंचायती राज में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज पंचायती राज, अबाउट इट्स हिस्ट्री, इट्स प्रोग्रेस, इट्स प्रेजेंट, इट्स एनालिसिस ऑन इट, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, रोल ऑफ वुमेन क्या है, स्कॉलर व्यूज क्या है। तो इस तरह से जब हम एनालिसिस करेंगे ना प्रीवियस क्वेश्चन का, तब हमें समझ में आएगा। ओके, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस की बात करते हैं, और बहुत सारे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस है जो लक्ष्मीकांत का मेंशन है, सारे कवर करने हैं। मैंने पे लिमिटेड ही रखे हैं, पर मैं आपको लिस्ट करा रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल, सो सॉरी फॉर माय slip of tongue. Then there is the journal, Finance Commission, UPSC, National Commission for Women,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। ओके, तो जितने भी कमीशन हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मेंशन है, मोस्ट ऑफ द कमीशन ये सारे कवर होते हैं यहाँ पे। देन there's the topic of federalism in India. Again, यहाँ पे its evolution, trends, issue, challenges, interstate relation, recent developments. Okay. Then constitutional provisions क्या क्या है? Again, changing nature of interstate relations. तो interstate disputes वो सब यहाँ पे कवर होगा। टॉपिक नंबर 8 इज अबाउट प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे नेहरूवियन मॉडल आएगा, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, नीति आयोग, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सब कवर होगा। ओके, देन टॉपिक नंबर 9 इज अबाउट सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल मूवमेंट्स में बेसिकली एनवायरमेंटल, वुमेन, दलित, ट्राइबल, पीजेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स में लिख देना। ओके, एंड आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स में रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, एथनिसिटी। एंड एक चीज जो यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं वो है पार्टी सिस्टम, national and regional party system. There is national and regional political parties, ideology and social basis of parties, and pattern of coalition government. तो ये भी कवर है। तो बेसिकली लक्ष्मीकांत में जितना पढ़ते हैं वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करना है। इन दिस वे पेपर 1 हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं अभी तक। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिस पे ध्यान देंगे वो होगा इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव syllabus coverage of paper 2, section A and section B. Okay, so in order to make this video shorter, हमने आज की वीडियो में देखा स्टार्टिंग से कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन हमने चूज किया है तो पॉपुलर एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है। उसके सिलेबस में हमने डीपली मैनर में एक्सप्लेन किया पेपर 1 में कौन से पेपर्स होते हैं, पेपर 2 में कौन से पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने हार्स के होते हैं, टॉपिक्स में कितने ईच पेपर कितने मार्क्स का है, हाउ मेनी क्वेश्चंस पूछते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने कंपलसरी है, कितने ऑप्शनल है। उसके बाद मार्क्स पैटर्न समरी देखा हमने कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली, कितने पूछते हैं, कितना हमें एम करना है स्कोर के लिए। हमने देखा कि पेपर 1 डिटेल मैनर में कंप्लीट किया। एज यू कैन सी हियर कितने टॉपिक्स हमने एक्स्ट्रा लिखे जो यूपीएससी ने कवर नहीं किया है, इसलिए पेपर 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन डिटेल मैनर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी बेस्ड ऑन द रिव्यूज, द कमेंट्स आई रिसीव ऑन this video. I'll definitely make sure कि मैं next video भी on time बनाऊं before I make the next video on paper 2 comprehensive syllabus coverage। same कि जो topic missing है वो हम cover कर पाए and quickly read कर पाए। Last advice that I want to tell you is that make PYQs your best friend। We need to practice answer writing as early as you can, okay? Because political science and international relation is not just what you say but how you say it, okay? That will get you the marks। ओके, एंड माय एम इज कि मैं वीडियोस सारे मेंस 2025 तक कवर कर लूं ताकि मेरे जितने भी वीडियोस होंगे सारे सब्जेक्ट्स पे, सारे टॉपिक्स पे, वो 2025 एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करे मेंस लिखने के लिए। ओके, सो इन अ डे और सो ये सिलेबस भी कवर हो जाएगा। एज सुन सिलेबस कवर हो जाएगा तब तक आप पेपर 1 के पीवाईक्यूज प्लीज देख लीजिए, एक बार ग्लांस कर लीजिए। पेपर 2 का सिलेबस जैसे कवर हो जाएगा पेपर 2 का सिलेबस ग्लांस कर लीजिए। एंड उसी के साथ उसी के बाद जब हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा, पीवाईक्यूज भी हो गए होंगे, तो मैं एवरी टॉपिक पे इफ यू ऑल रिक्वेस्ट मी, इफ यू ऑल वांट इट फ्रॉम मी, एवरी टॉपिक पे मैं हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करूंगी। हम रिविजन कंसेप्ट टॉपिक्स को एक रिविजन फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हम इजीली मैं जैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ वैसे ही आप नोट कर पाओ। आपका मिनिमम पेजेस में मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी कवर हो जाएगा और आप मेंस 2025 में एम कर रहे हो तो आप उसको इजीली अचीव कर पाओगे एंड 280 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे मेरे नोट्स से, वो मेरी गारंटी होगी। बिकॉज ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। मैं एज सुन एज ये जो सेकेंड वीडियो में कवर सिलेबस होगा पेपर 2 का, उसके बाद थर्ड वीडियो में जिस तरह से रिस्पॉन्स आएंगे उसमें मैं मेरे नोट्स भी शेयर करूंगी, नोट्स की स्नाइपेट्स शेयर करूंगी मैं। तो स्निपेट्स देखने के बाद, फोटोज देखने के बाद आपको लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की मेरी नोट्स बनाने के लिए, और उसी के बाद मैं ये सारे कंसेप्ट को आपकी मेरी नोट्स में से कॉम्प्रिहेंसिवली
कवर करूंगी हर एक वीडियो को 40 मिनट से 1 आवर की रेंज में हम कवर करेंगे सो दैट एवरी टॉपिक इजीली कवर हो जाए। आपको मेरे वीडियोस के अलावा कुछ बाहर से रीड करने की जरूरत ना हो एक्सेप्ट फॉर एनी करंट अफेयर्स दैट यू विल रीड। ओके, एंड आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो आपको मेंस 2025 है, इसी के बाद जो भी मेंस होगा पीएसआईआर का ऑप्शनल के लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंसेप्ट मिलेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट दिस इज जस्ट माई फर्स्ट वीडियो, तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज इफ मेरी कुछ कहीं पे गलती हो गई होगी कोई वर्ड को मिस प्रोनाउंस करने में, एज व्हेन वी आर राइटिंग और व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग टू अंडरस्टैंड सम मल्टीपल थिंग्स, तो हम इजीली कभी कभी कुछ वर्ड्स को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। अपोलोजाइज फॉर दैट। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट और एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मेरे नोट्स शेयर करूँ, मेरे नोट्स को सिखाऊं मैं, और आपको हेल्प करूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करूँ यूट्यूब पे, सो ऑप्शन आप इजीली अचीव कर पाओ मार्क्स अच्छे। तो इसीलिए आप प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए आपके डाउट्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय वीडियोस, एंड नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली जरूर पेपर 2 मैं एक्सप्लेन करूंगी, एंड थर्ड वीडियो में मैं मेरे बारे में, मैं मेरे नोट्स के बारे में शेयर करूंगी, एंड उसी के बाद हम एक एक टॉपिक बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड let's meet soon. Till then, if you like my concept, then please give a like to this video, and also subscribe to our channel, because this is not my channel, this will be your channel as well, because you're going to gain from it. Okay, and share it with your friends so that they can get a complete knowledge about the syllabus and they will not miss any important concept and able to clear the exam. Thank you. All the best. Good luck.